اور اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع پلوامہ کے پنجن علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے دوران جیش محمد کے 4 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ یہ انکاؤنٹر کل شام شروع ہو گیا تھا۔ ہلاک شدہ ملیٹنٹوں میں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ سے فرار ہوئے 2 ایس پی او بھی شامل ہیں۔ جمعرات کو یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہو گیا تھا جب سیکورٹی فورسز نے پنجن گاؤں میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع کے بعد محاصرہ کیا تھا۔ اس دوران ایک رہائشی مکان میں موجود ملیٹنٹوں نے فورس پر فائرنگ کی۔ ملیٹنٹوں نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ رات بھر جاری رہنے والے اس انکاؤنٹر میں 4 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں پولیس لائنز پلوامہ سے ہتھیار سمیت فرار ہوئے دونوں ایس پی او بھی شامل ہیں۔ ملیٹنٹوں کی پہچان آریحل پلوامہ کے عمران اور پنجن پلوامہ کے عاشق احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ فرار ہوئے ایس پی اوز کی شناخت تجن پلوامہ کے شبیر احمد اور اٹمولہ شوپیاں کے سلمان کے طور پر ہوئی ہے۔ اس انکاؤنٹر میں 3 رہائشی مکان بھی پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ انکاؤنٹر کے دوران مشتعل افراد اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پتھراؤ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے فورس نے آنسو گیس کے گولے داغے اور پیلٹ کا استعمال کیا۔ اس دوران چند افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ پلوامہ میں جمعرات کی شام سے ہی موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کی گئی ہیں۔ ادھر پولیس اسٹیشن سوپور پر آج نامعلوم ملیٹنٹوں نے گرینیڈ حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ دونوں زخمی اہلکار سنتری کے طور پر تعینات تھے۔ زخمیوں کو پہلے سوپور اور بعد میں سری نگر کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایک ہی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں عبدالعزیز اور علی محمد شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ گزشتہ رات ملیٹنٹوں نے اننت ناگ کے سڈورا علاقے میں ٹیریٹوریل آرمی میں تعینات ایک جوان کے گھر میں داخل ہو کر اس پر اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ اس کے نتیجے میں حوالدار منظور احمد بیگ شہید ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد اگرچہ انہیں اننت ناگ کے ضلع اسپتال پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے منظور کو مردہ قرار دیا۔ حملے کے بعد فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز جائے واردات پر پہنچ گئے اور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر پولیس نے اس ضمن میں معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر لی ہے۔ شہید حوالدار منظور احمد بیگ کو فوج نے خراج عقیدت پیش کیا۔ بی بی کینٹ میں اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل کے جے ایس ڈھلن سمیت اعلی عہدیداروں نے شہید جوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے نمائندوں نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ملیٹنٹوں نے جس وقت بیگ پر حملہ کیا اس وقت شہید جوان کے پاس ہتھیار موجود نہیں تھے۔ وہ عید کے موقع پر چھٹی پر گھر آئے تھے۔ ملیٹنٹوں نے گزشتہ رات فوج کی ٹیریٹوریل آرمی میں تعینات حوالدار منظور احمد بیگ پر ان کے ہی گھر کے نزدیک گولیاں چلا کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ اس دوران لارکی پورہ میں فوج کے 19 RR ہیڈ کوارٹر پر شہید منظور احمد بیگ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس میں کمانڈر 2 سیکٹر بریگیڈ سچن ملک، ADC اننت ناگ اور دیگر اعلیٰ سول پولیس اور فوجی افسران نے شہید جوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید جوان کی نماز جنازہ میں بھی لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فوج نے اس موقع پر ان کو گن سلیوٹ بھی پیش کیا۔ شہید منظور بیگ گزشتہ 15 برس سے فوج میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس وقت ان کی ڈیوٹی بہی باغ کلگام کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں تھی۔ اہل خانہ کے مطابق وہ کچھ دن قبل عید کے سلسلے میں گھر آئے ہوئے تھے۔ اس دوران وہ ملیٹنٹوں کی گولی کا شکار ہو گئے۔ شہید منظور اپنے پیچھے بزرگ والدین، اہلیہ اور ایک بیٹی سمیت 3 بچے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اپنے عیال کا واحد کماؤ تھا۔ بھلیسا میں 4 RR اور SOG نے کچھ اسلحہ اور گولی بارود ضبط کیا ہے۔ علاقے میں کچھ اسلحہ اور مشتبہ افراد کی موجودگی سے متعلق اطلاع کے بعد چلی بالا میں تلاشی کارروائی انجام دی گئی۔ اس دوران سیکورٹی فورسز کو ایک گھر کے گاؤں خانے سے خاصی مقدار میں گولہ باری بارود برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں FIR درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس میں ایک گھر میں ہم نے سرچ کیا، وہ نام تھا اس کا محمد عباس
मंगता खांडे, वो एक मिलिटेंट का भाई है, एक्स मिलिटेंट का, जो कि 2010 में मारा गया था। वहाँ पे हमें AK-47 के 65 राउंड्स मिले हैं एम्यूनिशन, और एक राउंड SLR का मिला है, और मोटोरोला सेट जो है वॉकी टॉकी छोटा एक सेट मिला है दौरान हम जो सर्च कर रहे थे वहाँ पे। क्या हम आरीपांथन बीरवा में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब गांव के 4 नौजवान एक ही वक्त बिजली करंट लगने से झुलस गए। उनमें 17 साल नौजवान शकील अहमद भट्ट अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ बैठा। बताया जाता है कि शकील 5 कमसिन बहनों का वाहिद सहारा था। मकामी लोगों ने महकमे PDD पर इल्जाम लगाया कि उनकी नाकिस कारकर्दगी और गफलतशारी की वजह से लोगों को आए रोज अज खुद बिजली का तरसीली निजाम ठीक करना पड़ता है। उनका कहना था कि गांव में तरसीली निजाम इंतहाई बोसीदा है। लोगों का कहना है महकमा उसे बदलने में संजीदगी नहीं दिखा रहा है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो एक्चुअली PDD पावर डिपार्टमेंट की है। अगर उन्होंने इन तरसीली लाइनों को ठीक किया होता या ऑन टाइम वो ये आ गए होते कि जो लोकल पब्लिक है, जो उनकी एक्चुअली ड्यूटी है, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, उनकी जो ड्यूटी है अगर वो उसको वहाँ तक पहुँच जाए, लोगों का जो काम होता है वो उनको खुद ना करे पड़े, लेकिन जो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो काम करे, तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती। अगर यम बिल्कुल ठीक आसान आज तार बिजली आसे ठीक आसे ये हादसे हेके वनकस गसित कहीं यह गो अहंदे लापरवाही बिजली वाले लापरवाही सत गो यह हादसे वनकस। श्रीनगर में अब्दुल्ला ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार ने तकरीबन 25 भीड़ों को कुचल डाला। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बकरवाल बीती रात अपने मवेशियों समेत उस सड़क से जा रहा था। पुलिस ने इस ज़मीन में केस दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी को भी अपनी तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वॉक्सवैगन पोलो कार से यह हादसा पेश आया है। सिख तबका एक नुमाइंदा वफ्द ने शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में फ्लैट्स की अलॉटमेंट की आजादाना जांच का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनाइटेड सिख फोरम के सदर बिक्रम सिंह ने कहा कि ये फ्लैट गैर मुस्तहिक खानदानों को फराहम किए गए हैं। उन्होंने दोनों फिरकों से अमन और भाईचारा कायम रखने की अपील की है। उन्होंने मुतालबा किया कि शेखपुरा कॉलोनी में सिख माइग्रेंटों को भी माकूल रिहाइश फराहम की जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रूव किया जाए कि जो ये क्वार्टर मिले हुए हैं ये लीगली सबको अच्छी उन्हीं लोगों को मिले हुए हैं जिनको मिलने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रूव करे कि ये जो क्वार्टर मिले हुए हैं वहाँ ये भी माइग्रेंट है, हमारी 20 फैमिलीज हैं सिखों की माइग्रेंट, उनको भी वहाँ मिली जाए, क्योंकि उनको भी प्राइमरी पैकेज के हिसाब से वहाँ नौकरी मिली है, उनको भी मिला जाए। गवर्नर के मुशीर के सिकंदर ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर अक्टूबर में होने वाले JK इंस्टोर समिट 2019 के हवाले से बात की गई। समिट के सिलसिले में रियासती हुकूमत की JK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेशनल पार्टनर होने के बावसफ उन नुमाइंदों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सिविल सेक्रेटरी में तफसीली प्रेजेंटेशन और इंटरैक्टिव सेशन मुनक्किद हुआ। नुमाइंदों को बताया गया कि समिट का मकसद रियासत में बड़े पैमाने पर तिजारत के लिए सरमायाकारी के हवाले से प्लेटफॉर्म फराहम करना है। डंगरी विलगाम कुपवाड़ा में कायम सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्कूल एक खस्ता हाल इमारत में काम चला रहा है। पेश कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। डंगरी विलगाम कुपवाड़ा का ये सरकारी मिडिल स्कूल 2 कमरों पर मुश्तमिल खस्ता हाल इमारत में काम चला रहा है। 2 कमरों में 8 जमातों के तलबा को किस तरह तालीम के नूर से आरास्ता किया जा सकता है, इसका आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूल के ये कमरे भी काफी खस्ता हाल हैं। बच्चों को धूप में पढ़ाया जाता है। तलबा का कहना है कि वो शोर से काफी परेशान हैं। जगह की कमी के साथ साथ बैतुल खला भी टूट फूट का शिकार है। पानी का कोई खास इंतजाम भी नहीं है। मिडल स्कूल गसान 8 क्लास 2 क्लास से बच्चे पढ़ कहें ताप तम तम नबर दून पढ़ना दून क्लास तम रूद तम सारे टीचर पढ़ना मगर समझ कहें 8 क्लास
نیبر کن گڑ تاس شین ہیکان تاس مز بہت بیس گڑ ابر تس گڑ تک بہت بیس گاڑی ہند شور شین ہیکان پڑھت تم خاطر گھر کمر گھر بلڈنگ یہ پڑھو آرام سے اساتذہ بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں. وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس صورتحال میں وہ بچوں کے ساتھ انصاف کرنے سے قاصر ہیں. 2 کمروں میں سر ہمیں آفس بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہاں پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں اس وجہ سے. 1976 میں اسکول اسٹیبلش ہوا ہے, آج تک اس اسکول میں صرف 2 ہی کمرے ہیں سر. میرے پاس اتنی لینڈ اویلیبل ہے کہ یہاں پہ بلڈنگوں کی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بلڈنگوں کا انبار بنا سکتے ہیں, لیکن آج تک یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس وجہ سے یہاں پہ بچوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو گورنمنٹ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے, ہم اگر آپ بھی یہاں پہ ڈیلیور کریں گے تو کیسے کریں گے؟ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکول کی حالت دیکھ کر انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی ہے. وہ بچوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کرنے کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے آج کی کمپیوٹر ایج میں بھی ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں. ایک طرف سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ IAS بننے چاہیے, IPS بننے چاہیے, KS افسر بننے چاہیے, لیکچررز پروفیسرز بننے چاہیے. کیا یہ لوگ بن سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجیے کہ ان بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. اور ہمیں لگتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ تحت ان بچوں کو ان پڑھ رکھا جا رہا ہے, اور اس میں ریاستی سرکار پوری طرح سے ملوث ہے. 1976 میں یہ اسکول اسٹیبلش ہوا ہے اور آج تک صرف 2 کمرے اس میں بنے ہوئے ہیں. اس مسئلے کو جب نیوز 18 نے چیف ایجوکیشن افسر کپواڑہ کی نوٹس میں لایا تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ خود حالات کا جائزہ لیں گے. امید کی جا سکتی ہے کہ ان بچوں اور اساتذہ کو درپیش مشکلات کے پیش نظر اسکول میں تمام سہولیات میسر رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. نیوز 18 کے لیے کپواڑہ سے یحییٰ سلطان کی رپورٹ. گورنمنٹ مڈل اسکول کٹیاوالی بارہمولہ کے طلباء ان دنوں عارضی خیمے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے. مارچ کے مہینے میں اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا, لیکن ابھی تک محکمہ تعلیم بچوں کے لیے مناسب انتظام کرنے میں ناکام رہی ہے. پیش ہے سجاد حسین کی رپورٹ. 3 مہینے قبل مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعے میں گورنمنٹ مڈل اسکول کٹیاوالی بارہمولہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی. اس کے بعد چند طلبہ کی تعلیم کا انتظام دوسرے اسکول میں کیا گیا. پرائمری اسکول کے طلبہ کو اس کھلے میدان میں پڑھایا جا رہا ہے. ان بچوں کے لیے یہاں عارضی خیمے لگائے گئے ہیں. بارش کی صورت میں یا پھر درجہ حرارت میں اضافے پر بچوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے. یہاں پر زیادہ تر گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. مقامی افراد کا الزام ہے کہ محکمہ تعلیم اس معاملے پر غیر سنجیدہ نظر آتا ہے. ماسٹر آتے ہیں, بارش میں بھی آتے, دھوپ میں بھی آ جاتے, تو لیکن یہاں پڑھائیں گے کیسے؟ ہم نے آرمی سے ٹینٹ مانگ کر لیا, وہ لایا لگایا, لیکن حکام سے ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہاں 400 چولہا گجر ہے, گجر بستی ہے, لیکن ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, ہماری بات کسی حکام تک پہنچائیں کہ ہمیں کوئی شیڈ, کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ یہاں اس جنگلات کی زمین کے بعد ہمارے پاس اور کچھ زیادہ کہیں پر جگہ نہیں اویلیبل ہو رہی ہے. اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ طلبہ کے علاوہ اساتذہ کو بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کی بلڈنگ جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے, ڈیمالش ہو گئی پوری کمپلیٹلی. تو اس کے بعد ہم نے امیجیٹ یہ کام کیا کہ مطلب یہاں پر یہ ٹینٹ وینٹ لگائے. ٹینٹوں میں اس وقت ہمارے پرائمری کلاسز چل رہے ہیں, تو مڈل کلاسز ہمیں جو ہے وہ گرلز ہائی اسکول میں چل رہے ہیں. موسم خراب ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی میں پھر اس کو آف کر دیتا ہوں اسکول کو. ہاں, کیونکہ خطرہ مول نہیں لے سکتے نا آپ. ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے, ہمیں یہاں ٹینٹوں میں پانی آتا ہے, ہمیں پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. ہم کو اسکول نہیں ہے, ہم ٹینٹوں میں پڑھنا چاہتا ہے اور ہم کو اسکول چاہیے. چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے, تاہم چند مقامی افراد اس کی مخالفت کر رہے ہیں. CEO نے یقین دلایا کہ جلد ہی بچوں کے لیے کوئی مناسب انتظام کیا جائے گا. میں نے اپنے ڈپٹی CO کو وہاں بھیجا تھا, اس نے ان سے ایک رپورٹ لے لی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسی اسکول کے ساتھ وہ ایملگم ہو جائے فرسٹ سے لے کر 4 تک, لیکن کوئی 1-2 آدمی آ کر کہتے نہیں ہمیں ٹین شیڈ چاہیے. ڈیو کام صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات ہو گئی ہے. مجھے ڈی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہاں ہم بھی مدد کر لیں گے اور وہ بھی سامنے آئیں گے, اور وہاں ہم ایک فلات شیڈ تعمیر کریں گے اور اس شیڈ میں بیٹھیں گے. امید ہے کہ متعلقہ محکمہ اس مسئلے کے حل کی جانب توجہ دے گا.
न्यूज 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। नीट इम्तिहान में उधमपुर की अनन्या खजूरिया ने 549 नंबरात हासिल करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अनन्या का कहना है कि उन्होंने इस इम्तिहान के लिए कड़ी मेहनत की थी। अनन्या का कहना है कि उनके वालिदैन और दोस्तों ने हमेशा उनका काफी हौसला अफजाई की है। अनन्या ने लड़कियों से अपील की है कि वो भी नीट और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएं। यूजी 2019 में 549 स्कोर किया है और इसका क्रेडिट मैं कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स, फैमिली और फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को तो और अपलिफ्ट करने में हेल्प किया है, क्योंकि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोटा भी रखा हुआ है और रिजर्व जो RBA वगैरह वो भी उनके लिए भी कोटा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं जिसके माध्यम से बच्चे अप्रोच कर सकते हैं और कुछ क्रैक करते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट तबके की नौजवान नस्ल जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने में पेश है। माइग्रेशन की सऊबतों के बावजूद इस तबके की नौजवान नस्ल किसी से पीछे नहीं है। आयुष कौल नामी तालिब इल्म खेल के शोबे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई एजाजात हासिल कर चुका है। पेशे समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। भले ही जम्मू में इन दिनों सूरज की तपिश अपने पूरे आबोताब पर है, मगर मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी इस तपती धूप में भी अपना रियाज जारी रखे हुए हैं। आयुष कौल नामी ये नौजवान कश्मीरी माइग्रेंट हैं। आयुष इस तपती धूप में प्रैक्टिस करके खेल के मैदान में अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। 12वीं जमात में ज़ेर तालीम आयुष पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और साथ ही वो खेलकूद के मैदान में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। आयुष ने कौमी और रियासती सतह के मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लेकर अब तक कई एजाजात हासिल किए हैं, जिनमें 20 से ज्यादा गोल्ड और कई कांसे के तमगे शामिल हैं। मैं एथलेटिक्स में हूँ, स्विमिंग और क्रिकेट खेलता हूँ जी। एथलेटिक्स में मैंने सर स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं शॉर्ट पुट में, और स्विमिंग के मेरा नेशनल पार्टिसिपेशन है। क्रिकेट में भी मेरा नेशनल पार्टिसिपेशन है। क्रिकेट के लिए और दिल्ली के लिए मैं नेशनल्स गया था, और एथलेटिक्स में ईयरली यहाँ पर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मेरा शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल है। आयुष कौल का मानना है कि अगरचे रियासत में खेलकूद के शोबे में दरकार बुनियादी ढांचे का फुकदान है, ताहम वो अपनी अनथक मेहनत की बदौलत इस शोबे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि खेलो इंडिया नामी मरकजी स्कीम की बदौलत अब इनके जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आयुष ओलंपिक खेल मुकाबलों में शिरकत करने की उम्मीद के साथ अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। मैं अपने आप को एटलीस्ट ओलंपिक्स तक तो पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स में और मैं भी वहाँ एक्सेल करने की कोशिश चाहता हूँ। ओलंपिक्स में एक नाम हमारा भी है। जहां खेल के शोबे में अपनी कामयाबियों का सेहरा आयुष अपने वालिदैन के सर बांधते हैं, वहीं इनके वालिदैन का मानना है कि आयुष अपनी मेहनत और लगन से इन कामयाबियों को हासिल कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इनका बेटा खेल के मैदान में जरूर नाम रोशन करेगा। बचपन से ही इंटरेस्टेड था स्पोर्ट्स में ज़्यादा, इनफैक्ट एकेडमिक भी ही इज़ डूइंग वेरी गुड। तो जब भी ये बचपन से स्पोर्ट्स करता, मैंने हमेशा इसको एनकरेज किया। बचपन में एक बार हम कहीं आउटिंग पे गए थे, तो ये वहाँ पर इसने स्विमिंग बड़ी अच्छी की थी, तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस इसकी स्विमिंग से। तो मैंने इसका हमेशा एनकरेज किया, बेटा इफ़ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट्स तो आप स्पोर्ट्स खेला करिए, जो भी आपको चाहे, जो भी फैसिलिटी चाहे वो आपको मिलेगी, बट अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ रखो। तो एज ऑन डेट पे उन्होंने मुझे स्टडीज़ में भी सेटिस्फाई किया हुआ और स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं, तो मैं इसको फुल दिल से एनकरेज करता हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करे तो दैट विल वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। रियासत में खेलकूद के बुनियादी ढांचे के फुकदान की वजह से कई नौजवान खिलाड़ी अपनी मंजिल को पहुंचने में नाकाम रहते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों की मदद और इनकी हौसला अफजाई के लिए सामने आए, ताकि यहाँ के नौजवान खिलाड़ी आगे बढ़ सके।
न्यूज 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। लेह में अराजी की नाजायज अलॉटमेंट का मामला सामने आया है। LAHDC को अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के हवाले से कई शिकायत मौसूल हो रही थी। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल LHDC ले जाम्याल सिंह नामग्याल ने इस मामले में बरवक्त कार्रवाई की हिदायत जारी की। इस सिलसिले में तश्कीलशुदा टीम ने फौरन कार्रवाई करके 53 इंजीनियरिंग के करीब 42 कनाल अराजी पर से नाजायज कब्जे को हटाया। उन्होंने कहा कि काउंसिल से बाज़ाब्ता इजाजत के बगैर जमीन हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। लीगल करना भी नहीं चाहिए और होने देना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया, ये ज़मीन जो है वापस लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल लेके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ रखेंगे। और इसका पर्पस जो है, जो लोग हमारे पास दरख्वास्त लेके चाहे जिस ऑफिसर अथॉरिटी के पास भी आते हैं, उनको चाहे ज़मीन के या घर जो बेघर होते हैं 4 या 6 मरले पे छोटा छोटा घर बना के हम एक एक को वेरीफाई करके हम उसको देने जा रहे हैं। सभी लोग मिलके ये डिसीजन ये है, ये ज़मीन जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ रखेंगे और जितना भी खली है इसको एक्वायर करेंगे। जिसने कंस्ट्रक्शन किया उसको हम नोटिस सर्व करेंगे एज पर नॉर्म्स, और जो कानूनन तहत जो बनता है वही करेंगे। कुल मिला के ये ज़मीन हमने वापस लेना है। त्राल में कई माह से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का काम जारी है। नहर से निकलने वाली मिट्टी को नाले वातल आरा में डाला जा रहा है। उस पर निगीन पूरा त्राल के लोगों ने एतराज जताया है। उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। जब न्यूज 18 उर्दू ने महकमे इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद कार से बात की तो उन्होंने कहा कि महकमे आर्जी तौर पर मिट्टी डाल रहा है और काम मुकम्मल होने के बाद उसे उठाया जाएगा। उधर महकमे फ्लड कंट्रोल के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जलालुद्दीन ने कहा कि वो कल एक टीम जाए मौके पर रवाना करेंगे। छकरत हपर यपर तो यह गोस आड़स में आड़ गो बंद यह कर डैमेज फ्लड गई तो जमीन सोन गई खत्म अम सो डंपिंग पॉइंट कर डंपिंग अगर इन डंपिंग कर तेल क्या त्रो बागन वागन तथ कोड़ वाश तो सड़क तो टिपरो वारान ये कर पे तल गई पिंगलिश परगन कोल ये गई ब्लॉक ये अत त्रो पे मेज यह गई बंद न रूज वात पकन जमीन न रूज कोल तो न रूज कुन कह जमीन डैमेज गन आब ये जाम गो पत कोत गो आब ये सरसी आड़स मन ब्लॉक गो पत कोत गो आब। ये इसको हमने कहीं ना कहीं डंप करना पड़ता है किसी टाइम के, जब तक इसमें ड्राइनेस आ जाएगी, वेटनेस खत्म हो जाएगी। हम जो ही हमें लगेगा कि अब इसकी वेटनेस खत्म होगी, इसको हम लिफ्ट करके आइदर हम जहाँ पे लगेगा कि किसी नाले पे हमको बैंक में रखना है सो दैट उसकी स्ट्रेंथन हो जाएगी, वहाँ पे डालें, या कहीं और को हम टेक्निकली या किसी और तरीके इसको हम डिस्पोज ऑफ करें जहाँ पे हमें लेवलिंग की ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ से हम जहाँ पे आज के टाइम पे इसको डंप किया जा रहा है वहाँ से हम उठा देंगे। जिला बड़गाम में हालिया बारिश के सबब लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। नदरू पीरबाग के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि पानी की निकासी का निजाम ठीक न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से स्कूली तलबा को भी काफी मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की है। प्रॉब्लम ड्रेनेज प्रोन गुक मह गाम आम योर कॉलोनी कजक ड्रेन योर खोर कर ड्रेन मगर अस कड़क कर दान जमीन दिवान खराब वो वन पे पतम 2014 पे वोत वन अस कदो ड्रेनेज वन फर्स्ट बाद आख रेत बेस फर्स्ट पे मगर कड़क वन थमुत कह जनाब ये प्रॉब्लम गो मामूली ये पे रूद ये डॉक्टर मुश्ताक बसान अमिस आव पेशेंट तम फुट बिचारस कल दब लोगों से कल फुट सन सोर सह जेर इलाज तहत द्राय वो द्राय अगले प्रोटेस्ट कर पुलिस तम सात दोक करो यह पान वातनो यह कत मगर वातनोक नसान ये पे जल्द अज जल्द कम गन अगर लकट बच्चे इत पे क्रवलिंग कर तम हेकन यतनस मरित और प्लस अपार्ट फ्राम दैट तुम हेकू पान ये विजुअलाइज कर ये कचा प्रॉब्लम है। तुलमुला गांदरबल में सालाना खीर भवानी मेले के सिलसिले में तैयारियां जोरों से जारी है। जिला इंतजामिया और दीगर रजाकार इलाके में साफो सफाई और सजावट के काम में मसरूफ है। सालाना मेले में हर साल खासी तादाद में अकीदतमंद हिस्सा लेते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित खास तौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं। रवा बरस मेला खीर भवानी 10 जून को मनाया जाएगा।
जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। तमाम सहूलियात और इंतजामात को यकीनी बनाने के हवाले से जिला इंतजामिया ने अफसरान की एक कमेटी तश्कील दी है। डीडीसी गांदरबल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए यकीन दिलाया कि अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। यात्रियों का खीर बावनी में जैसे पहले होता था, पूरे इंतजाम हमने कर दिए, ठहरने का इंतज़ाम, उनका बैठने का इंतज़ाम, टेंट्स, वहाँ की सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ सारे टाइप हो गए हैं एज़ पर द पास प्रोसीजर। और बहुत अच्छी तरह अभी भी उन पे काम चल रहा है, उनकी डीसिल्टिंग वगैरह सारे काम हो गए हैं। तो बस हम हमारे तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिवोटीज़ को आ जाएं और हमें मौका दे दें खिदमत करने का। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के सिलसिले में बारामूला में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही की इंतजामिया कमेटी की जानिब से मुनक्किद की गई। उसमें खासी तादाद में शुमाली कश्मीर के अकीदतमंदों ने शिरकत की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया गया था। अमन खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। प्यार मोहब्बत में रहें, मज़हब अपनी अपनी जगह पर हैं, वो मज़हब अपने पर चले, क्योंकि उन्होंने भी जहाँ इस्लाम की जगहों पर गए हैं उन्होंने मुसलमान भाइयों से कहा है आप नमाज़ पढ़ें, आप अपने पैगम्बर को याद करें। उन्होंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आपका मज़हब गलत है या आप हमारे मज़हब में आइए, उनका वो फरमान नहीं था। वो हर मज़हब के लोगों को जाकर यही तलकीन करते थे कि वो अपने मज़हब पर कायम रहें, मगर खुदा को और खुदा के काम को वो आगे चलाने के यत्न करें, जिस तरह से उनको अपने पैगम्बर ने दरस दिया है। जिला रामबन के बटूत में रूहानी संत सम्मेलन का इनेकाद किया गया। 28वीं संत सम्मेलन में मुल्क भर के कई संतों ने शिरकत की। 3 दिन तक चलने वाली रूहानी सम्मेलन में मुख्तलिफ रियासतों से आए श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। मजहबी लोग तीनों दिन यहाँ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस सम्मेलन को एकता सम्मेलन का नाम भी दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी शिरकत कर रहे हैं। कल बटोत में झांकी निकाली जाएगी। इतवार को सियासी लीडरान समेत कई मारूफ शख्सियात भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। महापुरुषों का बटोत की पावन धरा पर पधारने के लिए हर साल की तरह इस साल भी कल शनिवार को एक नगर कीर्तन होगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रात को माता रानी की चौकी होगी। कठुआ में असिस्टेंट लेबर अफसर दफ्तर के सामने बरतरफ किए गए मुलाजमीन ने एक निजी सनत भारत उद्योग के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने फैक्ट्री मुलाजमीन की बरतरफी में लेबर दफ्तर के मुलाजमीन पर मिली भगत का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि वो कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उन्हें अचानक निकाल दिए जाने से वो बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से मसले को जल्द हल करने की अपील की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके साथ मिलकर, मैं कहता हूँ कि हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे कुछ दाल में काला है, सभी लोग हैं, सभी एक थाली के चट्टे हैं। ये हमें तो बिल्कुल इंसाफ करने की उम्मीद नहीं बिल्कुल में दिखाई दे रही। मैं एक बात ये मीडिया के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि लेबर कोड जो लेबर कोड किस लिए बनाई गई है, जो लेबर के जो वर्कर हैं उनको इंसाफ मिल सके। कब से ये दर बदर बढ़ कर रहे हैं, मगर अब इनको कोई इंसाफ की कोई सूद नहीं लेने वाला और ना ही कोई इंसाफ की कोई किरण दिखाई दे रही है। भारत जो फैक्ट्री है, सिक्का बनता है वहाँ पे, लेड फैक्ट्री है, वहाँ से 12 मुलाजिम जो पक्के परमानेंट हैं जो हैं उनको निकाल दिया गया है और बाकी जो टोटल लोकल निकाले हैं। और दूसरी बात है जो काम चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं कि बाहर से ठेकेदार लेके आ रहे हैं और बाहर के लोग ये लोग हैं वो बाहर के लोग का वो काम कम दिहाड़ी में। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर हमारा कोई मसला हल हो। लोकल आदमी हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम जो बाहर के लोग फैक्ट्री लगाते हैं किस लिए लगाते हैं कि लोकल जो लोकल है जहाँ लगती है इंडस्ट्री उनको रोजगार मिल जाए, उनको मिले नहीं, वो तो बेघर हो रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है। आगे बढ़ते हैं। गांदरबल में महकमे सेहत ने बटवीना के लोगों को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हालांकि इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत मौजूद है, लेकिन उसमें मुनासिब मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ही दस्तयाब नहीं है। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी की वजह से तिबी मरकज अक्सर खाली रहता है और जब कभी डॉक्टर्स आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही यहां रहते हैं। महकमे सेहत की लापरवाही की वजह से इलाके की बड़ी आबादी को परेशानियों का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले के हल की अपील की है।
यहाँ अक्सर अवेलेबल नहीं होते, जब आते भी हैं 11 बजे आते या 3 ही बजे निकलते। प्रॉब्लम ये होती है अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो यहाँ पर आता है 3:30 पौने 4, उसको यहाँ बोलते हैं वो डॉक्टर 3 ही बजे यहाँ से गए। न कि ये एक दिन का हाल है, बल्कि अगर आप यहाँ किसी से भी पूछोगे ये तो हर रोज़ यहाँ का मसला होता है। यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल अक्सर नहीं होते, और दूसरी बात है यहाँ 12 बजे आते हैं और 3 बजे निकलते हैं, बड़ी शर्म की बात है। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर सब सोए हैं। मेरी गवर्नर से इल्तिजा है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से इल्तिजा है, मेहरबानी करके इस मसले को हल करें। बांडीपुरा में चंद रोज कबल कलूसा गुड्डल सड़क की तजदीद और मरम्मत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक सिर्फ 4 रोज कबल सड़क के काबिल मरम्मत हिस्सों पर तारकोल बिछाया गया, ताहम कम दर्जे हरारत और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से तारकोल एक ही जगह जमा हो गया है। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि सड़क की तजदीद और मरम्मत दोबारा की जाएगी। नहीं भाई त्रोख ये तार ये मैगडल, मगर ये सोरे वोथमुत वनस अत गई सिर्फ यह आज चूरिम, मगर चूंकि असली गई अत 2 दह त्रेम मुबलेल अत मज समझ ये मुबलेल ये क्या ये त्रोमुत। हाँ, ये मेरे नोटिस में आया था एक्चुअली। वहाँ पर जब पैचिंग चल रही थी तो कल मौसम भी एकदम टेम्परेचर डाउन हो गया, और आपका जो हार्ड मिक्स प्लांट है वो श्रीनगर में है। तो वहाँ से जब मटेरियल लाते हैं तो यहाँ तक आते कभी कभी वो ठंडा भी हो जाता है, खासकर जब मौसम वहाँ पर टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो मैंने एक्जन से बात कर ली है, वो स्पॉट पर जा रहा है, तो पूरा हम दोबारा ठीक करवाएंगे।